रेगुलेशन कहाँ गया? Wait 1 second, I'm just finding out the handout of regulation. Did you all download the regulation का handout? Yes, sir. हाँ, आ गया. Today we gonna just discuss and I'm gonna just give you informations on airport. आपको बस एक छोटा सा brief दूंगा and I'll just make you understand some stuff. Regulations का. ठीक है? Well, else you can just understand that and you can be with the same page with me. We are not gonna do this first chapter of the rules of the air, but we are gonna understand पहले airports. Airport क्या होता है? It's like the airport. What are the markings on the runway? Which is very important, which is gonna help you out also. ठीक है? फिर बाद में rules of the air में करते हैं. So what is aerodrome? Movement area. So हमारे एयरपोर्ट में ना there are different areas. What are the areas? जहाँ पे एयरक्राफ्ट पार्क्ड होता है, जहाँ पे एयरक्राफ्ट टैक्सी होता है, जहाँ पे एयरक्राफ्ट रनवे पे जाता है. different areas आते हैं. So the area are defined in different ways. Movement area, maneuvering area and apron area. Three main areas would be there on an airport. वो टर्मिनल वर्मिनल की बात नहीं कर रहे हैं. Three main area would be there. The apron where the aircrafts are parked is known as an apron. Okay. Then second is the movement area and third is the maneuvering area. अब movement area, maneuvering area क्या है? Movement area is defined as the part of an aerodrome intended for the surface movement of the aircraft, including maneuvering area and the aprons. Movement का मतलब क्या? मतलब घूम फिर सकते हो, कहाँ कहाँ पे आप अपना एयरक्राफ्ट को लेके जा सकते हो. So the movement area includes all the places where the aircraft can maneuver. Maneuver means what? Left right turn कर सकता है, टेक ऑफ भी कर सकता है, लैंड भी कर सकता है. They are all the part of maneuvers. So the movement area includes all the places where the aircraft can go on the runway, including the taxiway, including the aprons and including the runway. So you can add down that point into the bracket that maneuvering movement area would include the areas where the apron is there, the maneuvering areas. This means what? The taxiways, the runways. Okay. So this is what the movement area. Then there is no maneuvering area का definition written, वो double print हो गया. Maneuvering area क्या है वो आपको लिखना पड़ेगा. Movement area, maneuvering area. Maneuvering area क्या हो गया? जहां पे सिर्फ आप मैन्यूवर कर सकते हो. So in that no apron would
This meeting is being recorded. One second, guys. Huh? So, movement menu. So, Aditya, are you here? Can you hear me, Aditya? Okay. So, Aditya, we have just completed with the density. So, I have just started with the regulation. So, regulation में we are gonna first understand the aerodrome. ठीक है? Aerodrome क्या होता है? तो movement area is the area where, yeah. Yes, Aditya. Okay. Yeah. Now, movement area is the area where the aircraft can move freely. Movement. Apron is the area where the aircraft can move, and including the maneuvering area. Maneuvering area matlab ke the taxiways, runways, and all. Okay. But then what is maneuvering area? Maneuvering area matlab ke only the taxiways और एप्रन जो होता है वो ही मैन्यूवरिंग एरिया होता है. एप्रन इज नॉट इंक्लूडेड इन द मैन्यूवरिंग एरिया. सो इफ यू वांट टू राइट इट डाउन इन योर बुक. द मैन्यूवरिंग एरिया इज द एरिया वेयर द एयरक्राफ्ट कैन मैन्यूवर, व्हिच इंक्लूड्स द रनवे एंड द टैक्सीवेज ओनली. What is apron then? Apron is legally defined the portion of an aerodrome where passengers, mail and cargo are loaded onto the aeroplane. एप्रन जहां पे एयरक्राफ्ट पार्क होता है, पैसेंजर डिसम्बार्ग होता है, एयरक्राफ्ट में आते हैं, लोड जो बैगेज है सब चीज एक्सचेंज ऑफर चलते रहता है, fueling thing and whatever services is required, that all things happen into the place where the apron is there. Okay, now what is an aerodrome and what is an airport? दो डिफरेंस बता दो मेरे को बस. एरोड्रोम लिखो अपने बुक में. यार लैग करने लग गया. एरोड्रोम क्या होगा? अभी आप मुंबई को एयरपोर्ट बोलते हो या एरोड्रोम बोलते हो, मेरे को बताओ जरा. एयरपोर्ट बोलते हैं. एरोड्रोम किसको बोलते हो आप? छोटा एयरपोर्ट. छोटा एयरपोर्ट. या परफेक्टली फाइन, छोटा एयरपोर्ट, बट इट्स नॉट डिफाइंड दैट वे. बट या इट्स अ छोटा एयरपोर्ट. An airport where only an airstrip is there, where no taxiway is there, no terminal building is there, only an airstrip is there, और एक area specified हो गया है, which is not yet developed, but हाँ aircraft आके land करके take off कर सकता है. That is known as aerodrome. No extra facilities or the services has been provided on that. No ATC tower is there. That is known as airport. Aerodrome, sorry. Airport is like when you get all these services, saying that terminal building is there, maintenance services available for the passengers, firefighting services are available, medical services available. Terminal building is there, where a terminal building passengers lounge is there to sit and they relax, like seats and everything should be there. Then the second is what else हो सकता है? Parking space. Number of aircraft can park, maintenance service for that aircraft, hangars, everything. So what all facilities are there, उसको हम airport बोलते हैं. Like नवी मुंबई में एयरपोर्ट खुल रहा है, you must have all the seen the video, right? बढ़िया बन रहा है. That is the airport ना. सब चीज है वहां पर. ट्रांसपोर्टेशन भी है, सब है. That all is the part of airport. It's like वो आप कितना facility, but minimum operational requirement to conduct a flight, security should be there. वो एयरपोर्ट पे होगी, एरोड्रोम पे नहीं होगी. Security, right? So this is what the airport is known as. The difference between the aerodrome and the airport. Did you all got it? Right? Sure. Then aerodrome elevation. In MET हम लोग ने पढ़ा ना,
परसों ही शायद तक, एलिवेशन इज द हाइट ऑफ द एयरफील्ड वेल इट इज सिचुएटेड फ्रॉम द मीन सी लेवल। कौन सी हाइट पे है, राइट? एरोड्रोम एलिवेशन, एरोड्रोम रेफरेंस पॉइंट। अभी एलिवेशन क्या हमारा रनवे, डू यू थिंक सो इट्स अ स्ट्रेट लाइन? ऐसा मेजर पट्टी लेके बैठूंगा तो पूरा इक्वल आने वाला है? समथिंग बम्पीनेस ऊपर नीचे होगा। सो द पॉइंट एक एरोड्रोम पे फिक्स कर दूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई एम गोना कैलकुलेट एवरीथिंग। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स तो 1 डिग्री भी इस तरफ गया इस तरफ गया, the coordinates is gonna change but the airport, so एक point होगा एयरपोर्ट पे जहां पे it would be used for the purpose of calculation and geographic location define करने के लिए। aerodrome reference point, aircraft stand, taxi lane। stands पे जो एप्रन पे जाने के लिए जो टैक्सी लेन होता है ना, स्टैंड पे जाने के लिए, like how if this is your terminal building, ये स्टैंड बने हुए जहां पे पैसेंजर्स आते हैं, राइट? यहाँ पे एयरक्राफ्ट पार्क होता है ऐसे, और ये एयरक्राफ्ट को वहां पे लीड करने के लिए जो एप्रन टैक्सीवेज बने हैं, यहाँ पे भी अगर टर्मिनल हुआ, यहाँ पे भी एयरक्राफ्ट पार्क हुए लाइक दिस। सो ये जो टैक्सीवेज है जो लीड कर रहे हैं बेसिकली टू ईयर टू ईयर टू ईयर टू ईयर टू ईयर ऑल्सो, एप्रन लेन टैक्सीवे। Apron taxiway is all the same thing, clear way, crosswind, instrument approach, ये तो हम लोग देखते हैं। लैंडिंग एरिया क्या होता है हमें पता है क्या होता है, ठीक है? ये सारी चीजें तो इन द नेक्स्ट इन दिस चैप्टर ओनली वी आर गोना अंडरस्टैंड क्या है, ठीक है? नाउ पेवमेंट स्ट्रेंथ ऑफ द रनवे। अब मेरे को ये बताओ जरा, क्या जेसीबी आपके रोड, आपका जो सोसाइटी का रोड है वहां पे आके खड़ा हो सकता है? टूट जाएगा ना रोड, इतना वेट कैरी कर सकता है। पेवमेंट स्ट्रेंथ इज नॉट, पेवमेंट जो रोड बनाया मैंने, इट्स नॉट फॉर दी हैवी व्हीकल्स, टूट जाएगा, राइट? सो एयरक्राफ्ट्स आर आल्सो वेइंग लाइक 63-73 टन्स। डू यू थिंक सो दैट वो इधर उधर जा सकते? और भाई उसके पास तो सेल्फ पावर भी नहीं होता है, स्टीयरिंग गवर्नर, लाइक इट्स मैन्यूवरिंग, इट्स कंट्रोल्ड ना, it's not that much like the car or something like that. So pavement strength should be good enough to hold that amount of weight. So the airports would decide के वहां पे कौन से एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते हैं, रनवे would decide that वहां पे कौन से एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते हैं। Mostly we make it like the maximum pavement strength so that all type of aircrafts can land, बट सेइंग दैट कोई एयरपोर्ट वैसा बिल्डअप होगा वहां पे वो एयरक्राफ्ट जा ही नहीं पाएगा 320 737 और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज़ द पेवमेंट स्ट्रेंथ इज नॉट दैट गुड। लैंड करूंगा कि भाई वो खड्डा गिर के हो जाए, कोई मतलब नहीं है वहां पे लैंड करना, राइट? सो पेवमेंट स्ट्रेंथ, सो दो चीज के पेवमेंट स्ट्रेंथ हो सकता है, तो क्लासिफाई दैट वी हैव गिवन द नंबर्स के एयरक्राफ्ट क्लासिफिकेशन नंबर और पेवमेंट क्लासिफिकेशन नंबर, saying that मेरा जो एयरक्राफ्ट आज मैंने मैन्युफैक्चर किया, saying that or else Airbus has manufactured one new aircraft which is known as A320. अब A320 का वेट इज लाइक अराउंड 63 to 73 टन्स, मतलब 63,000 to 73,000 टन्स। अब वो एयरक्राफ्ट को लैंड करने के लिए कितना पेमेंट चाहिए, उसके लिए एयरक्राफ्ट क्लासिफिकेशन नंबर डाल दिया मैंने कि अगर मतलब नंबर्स दे दिए सेइंग दैट ये कैटेगरी से ये कैटेगरी के बीच में अगर कोई भी वेट आ रहा रहेगा उसको मैंने नंबर 56 दे दी। अब एक मैंने रनवे बनाया टू लेट दैट A320 लैंड ओवर हियर एट माय प्लेस। व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू, ये जो 56 नंबर ऑफ पेमेंट है इससे ज्यादा ही होना चाहिए मेरा लाइक पेमेंट क्लासिफिकेशन नंबर, रनवे का क्लासिफिकेशन नंबर। इससे कम होगा तो डू यू थिंक सो दैट कैन बी लैंड, A320 लैंड कर पाएगा यहाँ पे? क्योंकि ये पेमेंट उनके बेसिस पे बनाया जाता है कि ये रनवे कितना वेट होल्ड कर सकता है विद इम्पैक्ट ऑल्सो, राइट? Understood what I am trying to explain you? So there is
pavement classification number and the aircraft classification number, and all the time the pavement classification number should be greater than the aircraft ka classification number, then only that aircraft can land on the runway. Understood? A simplest way to understand ACN PCN, aircraft classification number, pavement classification number. आपको बस उसका definition और understanding याद रखना. Understood guys? Yash, Vikram, Yes, sir. Basavraj, okay, चलो. Then moving further, ये मेरा रनवे जो होता है ना, रनवे इज ऑल्सो बिन डिफाइंड इनटू डिफरेंट क्राइटेरियाज. क्या रनवे है, क्या नहीं है, क्या क्या चीजें रनवे पे होती है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ये अगर मेरा रनवे है ना, दिस नॉर्मल रनवे पे जो ये जेब्रा लाइंस बनी हुई रहती है, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड. एंड रनवे और द स्टार्ट रनवे थ्रेशोल्ड लाइंस बोलते हैं उसे. क्या बोलते हैं उसे? थ्रेशोल्ड मार्किंग्स बोलते हैं उसे. We'll understand that threshold marking for now, but we need to understand the classification of the runway. अगर मैं आपको बोलूं आज कि आपको टेक ऑफ करना है in this direction, इस तरफ जाना है मेरे को, राइट हैंड साइड में, क्या करूंगा मैं? मेरा एयरक्राफ्ट को यहाँ पे पार्क करूंगा थ्रेशोल्ड पे, and then I'll take the runway roll and then I'll depart, right? अब ये रनवे रोल जो आप कर रहे हो, छोटे एयरक्राफ्ट को छोटा सा डिस्टेंस चाहिए रहेगा टू टेक ऑफ, बड़े एयरक्राफ्ट को बड़ा डिस्टेंस चाहिए रहेगा टू टेक ऑफ. डिपेंड्स ऑन द एयरक्राफ्ट वेट एंड द कैटेगरी ऑफ द टाइप ऑफ द एयरक्राफ्ट. द रनवे लेंथ which is required for landing and takeoff is known as what? So the length which is available by the runway जो बनाया हुआ है, तो रनवे पे टेक ऑफ रोल कितना अवेलेबल है? 3000 फीट का टेक ऑफ रोल अवेलेबल है, 4000 फीट का कितना? सो द रनवे पे टेक ऑफ रन अवेलेबल, कितना बड़ा रनवे है आपका टू मेक द एयरक्राफ्ट टेक ऑफ रन अवेलेबल. दिस इज द टेक ऑफ रन अवेलेबल फॉर माई, ये रनवे के हिसाब से सेइंग दैट 3500 फीट है. टेक ऑफ रन अवेलेबल. लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल कितना है आपके लिए? आप यहां से आओगे, यहाँ पे लैंड करोगे, स्टार्ट ऑफ दी एंड रनवे पे ही लैंड करते हो, मिड पे तो जाके लैंड नहीं करते हो, क्योंकि फिर आप अपना एयरक्राफ्ट को रोक भी नहीं पाओगे, विच एवर दी अवेलेबल रनवे वुड बी देयर आफ्टर दैट. सो लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल कितना है? From the start of the runway till the end of the runway, 3500 meters. Landing distance available, right? Landing distance available. Now अगर मैं टेक ऑफ कर रहा हूं आज और सडनली माय इंजन फेल्स, मिड ऑफ रनवे पे पहुंच गया यहाँ पे, और मेरे को पता चला कि मेरे को एयरक्राफ्ट को रोकना है, अब जबरदस्ती रोकना ही पड़ेगा, कुछ भी करके टेक ऑफ कर ही नहीं सकता मैं. सो आई नीड टू प्लान दैट थिंग बिफोर द फ्लाइट ओनली, कि अगर मैं रनवे का 500 फीट यूज कर लेता हूं और मैक्सिमम स्पीड होगी मेरी, तो बाकी के 3000 फीट में मैं अपना एयरक्राफ्ट को रोक पाना चाहिए. दैट इज द कैलकुलेशन दैट इज बीन मेड. लाइक कैलकुलेशन तो हो ही सकता है इसका कि भाई अगर मेरे एयरक्राफ्ट का इतना वेट है, मैं पूरा पावर दे दूंगा, और अगर मैं सडन ब्रेक्स अप्लाई करके पूरा रिवर्स थ्रस्ट भी यूज करूं, तो कितना डिस्टेंस लगेगा कि मेरे जहाज रुक जाए. Saying that मेरे को 2500 feet would required to stop the 70 tons of the aircraft. मेरा रनवे अवेलेबल कितना है? 3500. 1000 फीट पे I will decide that I need to take off or I need to land. Take off or I need to stop the aircraft, right? क्योंकि 2500 फीट मेरे को चाहिए ना to stop the aircraft. So वो stop करने के लिए जो distance आपको runway provide कर रहा है, वो कितना है? For this runway, actually it is this much only. Runway start से runway end तक, क्योंकि इसके बाद तो pavement है ही नहीं कोई ना.
एक्सेलरेशन स्टॉप डिस्टेंस अवेलेबल कितना है रनवे का? टेक ऑफ रन अवेलेबल, टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल, एक और होता है लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल, एक और होता है टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल। अब टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल और टेक ऑफ रन अवेलेबल में डिफरेंस क्या है? टेक ऑफ रन अवेलेबल मतलब के रनवे पे रन कितना अवेलेबल है मेरे को। डिस्टेंस अवेलेबल मतलब के टेक ऑफ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ टेक ऑफ हैपेंस 35 feet from the runway height। मतलब के टेक ऑफ रन कंप्लीट करने के बाद द एयरक्राफ्ट इज एबल टू सस्टेन हिमसेल्फ अप टिल 35 feet from the runway height, then it is known as that takeoff is completed। मतलब के क्या वो 35 feet के रेडियस में और थोड़ा और ज्यादा रेडियस में डू यू थिंक सो, डू यू रिक्वायर एनी ऑब्स्टेकल्स? नहीं ना, क्लियर होना चाहिए ना वो एरिया तो। सो वो होता है टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल। बट फॉर दिस रनवे व्हाट इज द टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल? तो ये रनवे की साइज जितना ही टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल है। सो आपको ऐसा प्लान करना है कि रनवे क्रॉस करने के बाद आई शुड बी 35 फीट अप जैसा, क्योंकि उसके बाद कुछ भी हो सकता है। अगर टेक ऑफ, अगर कोई एरिया जैसा रनवे के बाद डिफाइन किया गया है तो विल लुक दैट फर्दर। But what is takeoff run available, landing distance available, takeoff distance available, acceleration stop distance available? Did you understood this here? ये समझ में आ गया क्या है? So that I can explain you the new extra parts on of the runway। ठीक है, अब जैसे कि एक रनवे मैंने बनाया, दूसरा रनवे बनाया, बहुत ही अच्छा सा प्रिसाइज वाला रनवे, बहुत सारे कैलकुलेशंस देखकर और वगैरह। और मैंने क्या किया पता है? रनवे के बाद एक स्टॉपवे जैसा चीज बना दिया, सेम एज द साइज ऑफ द रनवे, same as the size of the runway and the pavement strength is also the same। रनवे के बाद पर थ्रेशोल्ड तो मेरा इतना ही है, ये मेरा थ्रेशोल्ड है, और मैंने यहाँ पे एक स्टॉप वे बना दिया, दैट नेम आई गेव इज स्टॉप वे। अब आप मेरे को बताओ, पहले वाले रनवे में मेरे पास रनवे साइज वॉज 3500 फीट, और मेरे को मेरे एयरक्राफ्ट को स्टॉप करने के लिए कितना डिस्टेंस चाहिए था? एक्सेलरेशन स्टॉप डिस्टेंस अवेलेबल 2500 फीट, 2500 फीट। और ये जो एक्स्ट्रा आया है वो 500 फीट का है, और स्टॉप वे जो मैंने बनाया। अब मेरे को बताओ, पहले अगर स्टॉप वे नहीं था तो मेरे को कब डिसाइड करना, कौन से डिस्टेंस पे डिसाइड करना पड़ रहा था? 1000 फीट ऑफ द रनवे यूज कर लूंगा तब डिसाइड करना पड़ रहा था कि भाई मैं टेक ऑफ करूं या नहीं करूं। बट आपको और थोड़ा टाइम मिला डिसाइड करने के लिए। 1500 फीट पे आप अब डिसाइड करोगे दैट आई नीड टू टेक ऑफ और स्टॉप द एयरक्राफ्ट, क्योंकि मेरे पास एक्सेलरेशन स्टॉप डिस्टेंस अवेलेबल इज मोर। बट दिस region that I have extra created, that this stopway cannot be used for takeoff purpose, takeoff run available में I cannot use this because एक ऑब्स्टेकल क्लियरेंस वाली भी तो बात होती है। टेक ऑफ के बाद एयरक्राफ्ट शुड बी क्लियर ऑफ द ऑब्स्टेकल। तो अगर एक एग्जांपल लूं मैं, ये रनवे है, ठीक है, और स्टॉपवे भी बनाया, बट यहाँ पे एक बिल्डिंग है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है। अगर मैं यहाँ से टेक ऑफ करूं तो मैं टकरा जाऊंगा, बट मैं यहाँ से टेक ऑफ करूं तो सीधा ऊपर चला जाऊंगा। सो ये स्टॉप वे टेक ऑफ के लिए यूज नहीं किया जा सकता, जो रनवे है वो ही यूज कर सकते। बस ये स्टॉप वे जो है एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए यूज कर सकते और उसके कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं, जो मेरे लिए फायदा है अब। बिकॉज मेरे को पहले 1000 फीट में डिसाइड करना पड़ रहा था कि मैं टेक ऑफ करूं या स्टॉप करूं एयरक्राफ्ट को, बट अब मेरे को 1500 फीट पे डिसाइड करूंगा, क्योंकि 500 फीट मेरे को एक्स्ट्रा लग रही है स्टॉप करने के लिए एयरक्राफ्ट को। So for this runway where the stopway would be there,
Okay, guys. So for the runway where the stopway is available, takeoff distance available is how much? ये एरिया एक्स्ट्रा बढ़ गया, सो स्टॉपवे तक. टेक ऑफ रन अवेलेबल कितना है? रनवे एंड तक ही. लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल, गाइस, लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल भी तो आपका बढ़ गया. आप रोक तो सकते हो ना एयरक्राफ्ट को वो रीजन में, राइट? सो इट्स गुड फॉर यू कि अब मेरे को डिस्टेंस भी ज्यादा मिल रहा है टू स्टॉप, बट इमरजेंसी यूज के लिए यूज कर सकता हूं उसको मैं. I cannot use that for calculation purpose without emergency. बोला तो यही गया कि इतने में रोको, बट कोई इमरजेंसी अगर हो जाती है तो आपके पास और 500 फीट का रनवे है कि भाई आप रोक लोगे जहाज को. अंडरस्टैंडिंग? ठीक है. सो वेट, I'll zoom this. Can you see the area where the stopway is there? Acceleration stop distance available has been increased, but for all of the purpose, the takeoff run available, takeoff distance available, landing distance available किधर तक है? Just till the end of the runway. Stopway is just used for acceleration stop distance available. Now, फिर ये सब करने के बाद तब मेरे को एक और चीज दिमाग में आया भाई कि रनवे के आसपास थोड़ा सा एरिया शुड बी क्लियर ऑल्सो. स्टॉप वे नहीं बनाया मैंने एक जगह पे क्लियर वे बना दिया. क्लियर वे इज व्हाट? आफ्टर द रनवे विद सम हाइट कितना एरिया क्लियर है, दैट इज नोन एज क्लियर वे. उसके डायमेंशंस वगैरह होते हैं. सो डायमेंशंस फॉर द क्लियर वे इज व्हाट यू नो कि क्लियर वे आफ्टर द रनवे the distance of at least 75 meters होना चाहिए वो on its sideways, and the length should not exceed half of the take off run available. मतलब जो ये take off run जो है ना मेरा 3500 फीट का रनवे है मेरा, उसका आधा कितना हुआ? अप्रोक्सीमेटली लाइक आई कैन से 1500 1800. तो 1800 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए वो एरिया क्लियर वे, उतना तो होना ही चाहिए, हाफ ऑफ द रनवे अवेलेबल. एंड साइड वे 75 मीटर्स होना चाहिए. एंड कितनी हाइट तक? तो 15% रनवे के बाद ये जो 1.5 डिग्रीज का एरिया हाइट जहां पे बनता है उतना एरिया शुड बी क्लियर. दैट इज नोन एज क्लियर वे. That clear way is used for take off distance available. मतलब आपका take off distance available अब बढ़ गया. पहले तो रनवे पे ही मेरे को 35 फीट पे पहुंचना था, बट अब मेरे को और एक्स्ट्रा चीज मिल रही है. हाफ ऑफ द रनवे विच इज देयर वो क्लियर वे होगा उसके बाद, राइट? सो दैट इज नोन एज क्लियर वे. Understood? Sir, takeoff distance available. Yeah, takeoff distance available is takeoff का definition. This is what you know. After the takeoff would get completed not when you just lift off your both main wheels and the nose wheel. The takeoff gets completed at 35 feet from the runway height. Okay, but वो 35 feet of runway height जो है वो runway पे. But अगर मैंने मतलब कि क्या वो 35 फीट तक कोई ऑब्स्टिकल भी नहीं होना चाहिए, तभी टेक ऑफ भी कंप्लीट कर पाओगे, नहीं तो टकरा ही जाओगे सामने बिल्डिंग में. सो मैंने क्या किया कि भाई ये जो 1500 फीट है ना रनवे के बाद का, उसके यहाँ पे कोई बिल्डिंग होनी नहीं चाहिए. जो है उसको तोड़ दो भाई. आई नीड एन एक्स्ट्रा रनवे फॉर माई पायलट्स टू टेक ऑफ कंप्लीट करने के लिए. 35 फीट की हाइट आराम से पहुंचे भाई. क्यों उनको बोलूं मैं कि रनवे पे फटाफट चढ़ जाओ? है मेरे पास रनवे एरिया अवेलेबल क्लियर वे बनाने के लिए, तो तोड़ दो भाई बिल्डिंग को सब. सिंपल, राइट? सो टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल वुड इंक्रीज फॉर यू ऑल गाइस. आपको रिलैक्सेशन है.
क्योंकि उतने हाइट उतने डिस्टेंस पे तो मेरा एयरक्राफ्ट जो आराम से अपने आप 35 फीट पहुंच जाने वाला है। बट अगर नहीं होता तो क्या आपको जबरदस्ती पहुंचाना पड़ता था टू कंप्लीट द टेक ऑफ and to get save your crew from the obstacle which is there ahead of you, right? So that is what takeoff distance available, right? Okay, बताओ और कुछ डाउट है इसमें, मेरे को बताओ। कोई है? ओके, 1 second guys। तो what you are gonna do, you are gonna solve this, solve नहीं मतलब कि ये ड्रॉ करोगे अपने बुक में। क्या करोगे? ड्रॉ करोगे। ड्रॉ करोगे तो समझ में आ जाएगा। बसवराज आपको समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग अंडरस्टैंडिंग? बसवराज, हाँ, आप मैसेज टाइप किया ना? ओके, 1 second। यस सर, ओके, ग्रेट ग्रेट, दैट्स गुड। चलो, now we can define what is stopway and clearway also। मतलब क्या? Stopway is the area after the runway which is used to stop the aircraft. Clearway is the area defined as the rectangular area on the ground under the control of the airport authority, selected or prepared as a suitable area over which an aeroplane make a portion of its initial climb to specified height. The origin of the clearway should be at the end of the takeoff run available. The land should not exceed half of the length of the takeoff run available, and this region जो है ना, that can be land also and that can be water also, because वहां पे हम स्टॉप नहीं करने वाले, टेक ऑफ के लिए यूज करने वाले, बस आपका वो क्लियर होना चाहिए वो रनवे। ओके, देन रनवे पे है ना रैपिड टैक्सी वेज होते हैं। रैपिड टैक्सी वेज कॉमनली कॉल्ड फास्ट टर्न ऑफ लेन्स। रनवे पे आप आ रहे हो, लैंड कर रहे हो और आपकी स्पीड होगी ना, फटाफट ये रनवे है, सेइंग दैट दिस इज द रनवे, यू आर कमिंग। और एक टैक्सी वे ऐसा भी बनाया जो ऐसा 90 डिग्री है। आप बहुत ज्यादा स्पीड से आ रहे हो तो डू यू थिंक सो यू कैन टर्न योर एयरक्राफ्ट 90 डिग्री दिस वे? गाइस, नहीं कर सकते ना। बट ये एयरक्राफ्ट ऐसा टर्न करके चला जा पाएगा। So that is known as rapid taxiways. Rapid taxiways, commonly called fast turn of lanes, are provided where the traffic density is high. They are used to allow aeroplanes to turn off on the duty runway at a speed higher than would be permitted at the right angle turn to a normal taxiway. Okay, rapid taxiway, the intersecting angle with the runway should not be greater than 45 degrees, not less than 25 degrees. Preferably it should be at 30 degrees angle. ओके, तभी कर पाएंगे ना। 45 डिग्री टर्न करने को बोलूंगा कैसे ही होगा, और 25 भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 30 इज द मोस्ट प्रिसाइज वे। एप्रन्स क्या है हमें पता है, एरोड्रोम विजुअल एड्स एंड मार्किंग साइंस। व्हाट आई विल डू, यू नो, आई विल नॉट टीच दिस ऑल थिंग्स मोर फर्दर। इतना करो, इफ कम पढ़ाई करेंगे इट्स गुड, बट आई डोंट थिंक टू रश थिंग्स, ठीक है? सो एरोड्रोम बहुत अच्छे से कर लेते हैं इफ आई एम एबल टू कंप्लीट। सो डू ऑल दिस, you have a time। एक और दिन मंडे would be the last day for the meteorology, and then from Tuesday onwards you are gonna start with the meteorology regulation from Tuesday onwards। in the morning batch Captain Shubho would teach you and start with the navigation for you all। okay, so you have Monday तक का time, Sunday छुट्टी है। जो जो चीज पढ़ाई है उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, that's good for us। कुछ डाउट है लिख लो, write it down, ठीक है? और लिख लो तो याद भी रहेगा when you are coming on the Monday, and then we'll discuss what else we can do।
further अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो. Basavara, especially for you, if you have not been like this last week, right? But if you are able to come on Monday, try to see all the videos, सारे videos. Aditya has helped us out for doing this. So वो videos सारे uploaded है. So you can see it once, तो आपको समझ में आ जाएगा. And I'll try my best to explain you with the shortest time which is available with us. Okay? And from Monday on, आपका Tuesday onwards navigation start होगा. तो I will request कि अगर आपको possible होता है आपके साइड, तो आप navigation में तो एटलीस्ट बैठ लो, right? ठीक है? Okay guys, then Sunday को छुट्टी लेते हैं. Do you want that I should teach you on Sunday? Sunday को भी पढ़ा सकता हूँ, but मेरे को मन नहीं कर रहा है पढ़ाने का. मेरा गला फट गया मेरा भी चिल्ला कर. राइट, छुट्टी लो, मजे करो. देयर इज नो पॉइंट कितना ज्यादा पढ़ाई करके क्या ही करोगे ना. ठीक है, बट दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि कम पढ़ेंगे दैट्स फाइन, बट जितना पढ़ाई किया उतना पढ़ाई कर ले, क्योंकि देयर इज नो पॉइंट. अगर सी डेमोज आर देयर फॉर द फ्री, इज ओनली फॉर योर फ्री है. तो आप मेरा पार्ट है कि आपको जितना ज्यादा मैं इंफॉर्मेशन दे दूं, इट्स मोर बेटर फॉर यू. देयर इज नो पॉइंट. ऐसा भी कर सकता हूं मैं, बट आई वांट कि जितना पढ़ाई कर रहे हो उतना तो बेटर कर ले हम, लाइक दैट. There is no point कि what I have been means like I have demanded means like I have only told कि मैं humidity वाला चैप्टर भी पढ़ाऊंगा आपको.